Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. Today we are going to start with a new topic, disorders of circulatory system. In this video, we'll be discussing about coronary heart disease, atherosclerosis, chest pain, irregular heartbeat, congestive heart failure, congenital and rheumatic heart disease, stroke, and myocardial infection. Let's discuss first of all about coronary heart disease. Coronary heart disease is also referred to as coronary artery disease, which refers to a pathological condition that causes narrowing of the coronary arteries so that the blood flow to the heart is reduced. It is also known as the CAD, coronary artery disease. It is a condition in which the plaque deposits block the coronary blood vessels, leading to a reduced supply of blood and oxygen to the heart. It is the most common type of heart disease across the world. It's also called atherosclerosis. It is a disease of the large and intermediate sized arteries in which fatty lesions called atheromatous plaques develop on the inside surfaces of the arterial walls. Arteriosclerosis, in contrast, is a general term that refers to thickened and stiffened blood vessels of all sizes. Here we can see the difference between a normal artery and the artery narrowed by atherosclerosis. So the lumen is larger in size and the blood flow can be smooth. But due to the deposition of the plaque on the wall of the artery, the lumen gets narrow, which increases the blood pressure due to atherosclerosis. Next, we talk about congenital heart defect. Congenital heart defect is present since the birth. It is common in infants. It is caused because mainly either due to maternal infection or by intake of drugs. There may be defects like the valves may not open or close properly, the septum which is separating the right or left sides may not be complete, or the chambers or arteries may be missing. Here they have shown an example of this congenital heart disease. This is a normal heart, and this is the one with heart disease in which there is an atrial septal defect, because of which there is a mixing of blood from the left and the right atria. Next we are going to discuss is chest pain or angina pectoris. Angina pectoris occurs in mostly the people who develop progressive constriction of their coronary arteries. The cardiac pain, the acute cardiac pain which is called angina pectoris. It begins to appear whenever the load on the heart becomes too great in relation to the available coronary blood flow. It is a medical term for chest pain that occurs due to insufficient supply of blood to the heart. Now, please make sure that you learn these terms with the differences across them, because there will be other terms also which will have similar words, but the problems associated will be different. So here we are talking about the angina. तो angina pectoris में जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है acute chest pain, जिसमें जनरली वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा. तो जनरली एंजिना पेक्टोरिस मेन एंड वुमेन में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के, लेकिन जनरली ये मिडिल एज या एल्डरली के अंदर ज्यादा कॉमन है. ये जनरली होता है बिकॉज द ब्लड फ्लो जो है कंडीशंस जिस पे अफेक्ट करती हैं, तो उनकी वजह से एंजिना पेक्टोरिस कॉज हो सकता है. नाउ वी टॉक अबाउट arrhythmia. This arrhythmia is a heart disease in which the heart's electrical system does not function normally. So it may be slow, it may be very fast, or it may be irregular, or it may skip beats, or sometime जो electrical signal है वो proper sequence में नहीं चलता है. जैसे SA node से AV node में, AV node से फिर आगे Purkinje fibers जो bundle of His जिसे हम कहते हैं वहां पर ट्रांसफर, तो ये नहीं चलता है. तो इसके लिए या
रीजंस हो सकते हैं अलग अलग, जैसे अबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ द पेसमेकर। पेसमेकर जैसे हमने पढ़ा एसए नोड, तो एसए नोड पेसमेकर है, वहीं से जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अगर उसका रिदम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइम पर चेंज नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर टाइम पर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पा रहा है, देन इट विल कॉज दिस एरिथीमिया। देन नेक्स्ट इज shift of the pacemaker from the sinus node, sinoatrial node की जगह पर it can, if it is shifting, अगर वो shift हो गया किसी और प्लेस में, अगर जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, तो उसकी वजह से भी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। Then there can be blocks at different points in the spread of the impulse through the heart, or there can be abnormal pathways of the impulse transmission through the heart, or the reason can be spontaneous generation of spurious impulses in almost any part of the heart. Next is congestive heart failure. Now, congestive heart failure is caused because of the weakening of the heart and blood vessels. It generally is common in the older and unhealthy individuals. The pumping efficiency is decreased because of the decrease in the blood flow and decrease in the muscle contraction. The vessels which are most likely to be clogged with fat and calcium are, which leads to the straining of the heart muscles, which damages the blood vessels and scars the tissue in repair. Now, congestive heart failure. Congestive heart failure, or what we generally call as heart failure. Now, heart failure में एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे तो हार्ट फेलियर वो प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो अगर वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे बोलेंगे हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो प्रॉब्लम है, उसके जनरली साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर सांस फूलना, या फिर बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहना, या स्वेलिंग आ जाना पार्ट्स के अंदर। और इनके कॉजेज हो सकते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि अगर आर्टरी से प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। हार्ट अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिब्रिलेशन हो सकता है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल का अगर कंजम्पशन कर रहे हैं, या इन्फेक्शन हो गया है, या कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। दो टाइप के मेनली हार्ट फेलियर होते हैं। एक है हार्ट फेलियर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर एक हार्ट फेलियर होता है विद नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इन दोनों, ये डिपेंड करता है कि जो एबिलिटी लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट करने की अफेक्ट हुई है, या पूरे हार्ट की जो एबिलिटी है रिलैक्स करने की, उस पर अफेक्ट आया है। तो उस पर डिपेंडिंग देयर कैन बी दिस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ दिस कंडीशन, हाउ डू वी डायग्नोज दिस हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर का कैसे पता लगता है? जनरली इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, या फिर चेस्ट की रेडियोग्राफी की जाती है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीवियर हार्ट फेलियर है, कि वो सब प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन की, तो किस हद तक नहीं कर पा रहा। जनरली बहुत सारे ये जो रीजंस है इनमें से जो हमने डिस्कस किए, जनरली वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, जैसे स्टॉपिंग ऑफ स्मोकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करना, डाइट में चेंज करना, और कुछ मेडिकेशंस वगैरह भी ये डिजीज कॉज कर सकती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज एक डैमेज हो जाता है जिसमें हार्ट के वॉल्व्स के अंदर डैमेज आ जाता है, और एक एपिसोड जिसे हम कहते हैं अक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद, तो हार्ट के वॉल्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर कैन बी दिस डिजीज विच इज कॉल्ड द रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें हार्ट के मसल्स और वॉल्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। हार्ट के वॉल्व्स अगर स्ट्रेच रहते हैं या स्कार्ड रहते हैं तो उसकी वजह से नॉर्मल नहीं है, तो हार्ट जो है डैमेज हो जाता है इस तरह से, और हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो जो ब्लड का फ्लो को वो प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो वो नहीं हो पाता है, तो वो जो इंटरप्ट हो जाता है, दैट्स रूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो जो है उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर अफेक्ट आता है। अब ब्रेन को एक प्रॉपर सप्लाई चाहिए, क्योंकि ब्रेन हम कहते हैं कि मास्टर ऑफ द बॉडी है, उसको हर समय एक सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की फंक्शन करने के लिए, और वो ब्लड के थ्रू मिल रही है उसे। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसे प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, इस्केमिक जिसमें कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का मतलब है जिसमें कहीं ब्लीडिंग होकर ब्लॉकेज हो गई है। अब जो इसके सिम्टम्स हैं उसके अंदर क्या हो सकता है कि कुछ समझ नहीं पा रहा है, या बोल नहीं पा रहा है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या दिखना बंद हो गया है, एक तरफ दिख नहीं रहा है,
और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है वो उनके अंदर रहता है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। उसके अलावा जो टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ओबीज है, ओबेसिटी है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डायबिटीज है, तो इन जो लोग हैं उनके अंदर स्ट्रोक के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो इस्केमिक जिसके हम कहा कह रहे थे, तो इस्केमिक जिसके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिक हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसी तरह से यहाँ पर जो स्ट्रोक हो सकता है, दिस कैन बी कॉज्ड। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं हार्ट अटैक। अब देखिए, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये दो तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते जनरली बच्चे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कॉरोनरी जो आर्टरी डिजीज जिसे हमने पढ़ा, ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, वो वो प्रॉब्लम है जिसमें कि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉरोनरी हार्ट डिजीज के साथ कोरिलेट कर कर लर्न करना है। हार्ट फेलियर को बहुत ही सिंपल तरीके से लर्न करना है कि हार्ट फेल कर गया, हार्ट फेल कर गया मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक के अंदर सिंपल एक आप याद करने का तरीका क्या है कि इसमें जो मसल्स हैं हार्ट के, वो डैमेज हो गए हैं, अटैक हो गया। किसके ऊपर अटैक हो गया? मसल्स के ऊपर अटैक हो गया। किसके मसल्स के ऊपर? हार्ट के मसल्स अटैक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो जनरली इसका रीजन जो रहता है वो होता है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है मसल्स को, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक कॉज होता है। इसके सिम्टम्स रहते हैं हार्ट बर्न, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, फीलिंग फेंट, कोल्ड स्वेट, टायर्ड, थकावट रहती है। जनरली बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि चक्कर आ जाता है या सांस फूलने लग जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है हार्ट के आसपास, या फिर पसीने आने लग जाते हैं, थकावट फील होती है। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। इसके साथ ही आई वाज टॉकिंग अबाउट कार्डियो अरेस्ट जिसे हम कहते हैं। कार्डियो अरेस्ट का क्या मतलब है? कार्डियक अरेस्ट जिसे हम कहते हैं या कार्डियो अरेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। तो हार्ट जो बीट करना बंद कर देगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज द कार्डियो अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट। ना एक और सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्ट की एक और डिजीज है जिसके बारे में बात करना चाह रहे थे, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया वो डिजीज है जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है। हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लो क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे हमने पढ़े 13 टाइप के अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, या फिर स्लो क्लॉटिंग रेट है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 स्पेशली अगर मिसिंग है, ये एक सेक्स लिंक्ड आपका डिसऑर्डर है जिसमें कि दिस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सो इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अफेक्ट होती है। सो एम आई एट रिस्क? तो ऑल्दो यू आर, अभी आप छोटे हैं, एज में इतने बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क पर कब आ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस हर तरह की बीमारी का इंक्लूडिंग हार्ट, और जैसे हमने बात किया था हाइपर टेंशन कॉज कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। तो स्ट्रेस, डायबिटीज, अगर लिपिड लेवल आपका एबनॉर्मल है, टोबैको, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी कैन लीड टू द हार्ट डिसऑर्डर्स। और इसको अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हैं, टोबैको नहीं लेना है, फैट और कोलेस्ट्रॉल की डाइट को नहीं आपने कंज्यूम करना है, हेल्दी वेट को करना है मेंटेन, डाइटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और डायबिटीज को, जिनके भी घर के अंदर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही कंट्रोल में होने चाहिए, जिससे कि हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कॉज नहीं हो। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हैं जैसे हेरिडिटी, अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एज के हिसाब से धीरे धीरे, या जेंडर वाइज भी हो सकती हैं, या अकॉर्डिंग टू रेस दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड। That's all for today. God bless you all. Thank you, dear students.